वालेकुम सलाम। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। We have discussed this problem in the last class. Okay, these three equivalents, that's A cross B equivalent to B cross A, and this you just simply put these maps, and these maps are clearly bijective. Okay, so we discussed this in the last class. Okay? Now we will discuss this problem 6.8, page number 155. And suppose A is an infinite set and capital F is a finite subset of A, then show that A minus F equivalent to A. That means removing a finite number of elements from an infinite set does not change its continuity. का मतलब क्या है? किसी भी इनफाइनाइट सेट से आप कुछ एलिमेंट माइनस कर देंगे तो इट विल रिमेन अगेन इनफाइनाइट सेट. तो वी विल उसी सेट के साथ कार्डिनलिटी दोनों के इक्वल है. यू सी ए माइनस एफ, मतलब ए से आप एफ को माइनस कर दिए और ए के साथ इक्विवेलेंट, इसका मतलब दोनों सेट के कार्डिनलिटी इक्वल है. तो दिस इज व्हाट सेज रिमूविंग ए फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन इनफाइनाइट सेट डज नॉट चेंज इट्स कार्डिनलिटी. तो कैसे प्रूव करेंगे? सपोज लेट एफ इक्वल टू a1 a2 an. दिस इज द फाइनाइट सेट. F is a finite subset of A. आपने ये finite subset, this is our finite subset A1 A2 AN, and choose D equal to A1 A2 AN plus 1 AN plus 2 that be a denumerable subset of A. Okay, since A is an infinite set, so always an infinite set contains a denumerable subset. ठीक है, ये हम already we have read, we have discussed this problem. An infinite set contains a denumerable subset. इसलिए हमने लिया, अदरवाइज आप कोई भी सेट से ऐसे नहीं कह सकते कि let this is a denumerable subset of a set B, yes, subset of A. Okay, since A is infinite, so it will contains a denumerable subset. That is why we take this D. और D कैसे लिया देखिए, A1 A2 AN plus 1 AN plus 2. पहले के जो n एलिमेंट्स है वो इसी f वाले एलिमेंट्स ऐसे लिए, ऐसे चूज किए. A1 A2 AN plus 1 AN plus 2 ऐसे एक सीक्वेंस. डिन्यूमरेबल का मतलब क्या है कि इट कैन बी रिटन एज ए इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. यू सी हियर A1 A2 AN plus 1 AN plus 2. यू सी सफिक्स में इंडेक्सेस, ये ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट एंड एक सीक्वेंस में है. So that finite n elements of D are the elements of F. D को ऐसे चूज किया है जिसका पहले n एलिमेंट जो है वो F के n एलिमेंट्स है. इसी को यहाँ रख दो. Now define a map G from A to A minus F. कैसे डिफाइन करेंगे? By G of A equal to A and G of AK equal to A n plus K. So G of A equal to A if A belongs to DC. DC means A if A does not belongs to B. Okay, or G equal to G of AK equal to A of n plus K if A belongs to D. That is G is 1 1 and 1 2. Therefore A is. अब कैसे हैं देखिए, ये यहाँ देखिए, अब A को आपने A के सबसेट दिया है आपने D. ओके, A के कोई सबसेट है D. इसका मतलब A किसके बराबर है? A is equal to D union D complement. ओके, D यूनियन D कॉम्प्लीमेंट जो है वो कंप्लीट A है. A के ही सबसेट D है. ओके, और D कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर जो है, तो दोनों ही तो विच एक यूनियन D यूनियन DC. ओके, ये सिंपल प्रॉपर्टी है. कोई भी सेट के सबसेट कोई है तो वो सबसेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दैट सेट. Okay, now G of A equal to G of D union DC. Okay, D union DC, you see this is nothing but that set A minus F. D union DC. Okay, A minus F, इसके रेंज देख लीजिए. G of A equal to range is your
दिस सेट। क्योंकि डी में जिसमें डी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेम टू सेम A1 goes to A1, A2 goes to A2, AN, ठीक है। और डी में जो है उसके लिए आप A1 जो मेंबर है उसको वो कहाँ चला जा रहा है, AN+1 में है, ठीक है। A2 AN+2 में, यू सी A1 AN+1, A2 AN+2, ठीक है। तो यू सी यहाँ ये एलिमेंट जो दूसरा पार्ट है मैप वो कवर यहां से कर रहा है, AN+1 AN+2, और पहले वाला मैप जो है वो A1 A2 AN यहां तक। तो अल्टीमेटली जो रेंज है G ऑफ ए के सारे D यूनियन DC के जो वो है रेंज है वो दिस इज योर नथिंग बट A/F, ये A-F, ये जो कंप्लीट आप जो सेट है F को माइनस करेंगे तो दिस, therefore G of A equal to A-F, पूरे रेंज सेट वो है, रेंज इज पूरे कोडोमेन, so therefore map is on 2, okay, similarly 1 1, so 1 1 and 2, it is clear from this map, okay, this map covers all the elements of A-A, ये पार्ट जो है वो n-1 से आगे it is covering all the elements and up to AN तक covering by this one, same to same. So therefore A is equivalent to A-F, this is A-F की कार्डिनिटी जो है वो A के कार्डिनिटी, two sets are equivalent if and only if their cardinalities are same, okay. Now we will come to this problem 6.13, page number 156. Suppose A is any uncountable set, okay, मतलब which is not countable, and B is a denumerable subset of A, then show that A minus B equivalent to A. A minus B, cardinality A minus B same as cardinality of A. That is, इसमें भी यही है, that is removing a denumerable set from an uncountable set does not change its cardinality. Okay, कोई अनकाउंटेबल सेट है हमारे पास, उससे हम किसी डिन्यूमरेबल सेट को हटा दें तब भी वो इट विल रिमेन अनकाउंटेबल, ओके, कार्डिनलिटी उसी सेट के बराबर। नाउ लेट B1 B2 B3 दिस सेट, ओके, B is a denumerable subset of A, यहाँ देखिए B is a given है, ये B is a denumerable subset of A, denumerable है B, तो कैसे लिख सकते हैं हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस B1 B2 B3, ये एक सीक्वेंस है, ओके, B equal to B1 B2 B3 because B is denumerable, ओके, ऐसे कोई भी सेट ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, एक सीक्वेंस में वो जब denumerable है, denumerable की प्रॉपर्टी है कि it is a infinite sequence of distinct numbers. अरे यार साइकिल खड़ी, साइकिल, अरे साइकिल लेते गया हुआ, शायद गेहूं लेने गया। Then set A minus B is infinite. Okay, you can check it. If B is denumerable, then A minus B is infinite. Otherwise, मशीन पे गया, मशीन पे otherwise मशीन पे गया, मशीन पे हाँ, कहानी मानी तो कोई तो गुल्ले वुल्ले देने गया होगा। ऐसे माइक ऑफ करो। So and hence contains a denumerable subset, ठीक है, तो A minus B infinite हो गए, ये छोटा सा फैक्ट देख लीजिएगा, ओके, B denumerable subset है A के, तो A minus B जो इनफाइनाइट है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या है, कैसे इनफाइनाइट हुआ A minus B, ये इंपॉर्टेंट है, जब इनफाइनाइट है तब hence contains a denumerable subset, otherwise नहीं कह सकते, क्योंकि ये थ्योरम है हमारे पास, A minus if in every infinite set contains a denumerable subset, then we will take a denumerable subset, okay, first we will prove that A minus B is infinite and then hence contains a denumerable subset, say D equal to D1 D2 D3, again denumerable है, D is also denumerable, so D1 D2 say D1 D2 D3 like this. Now let A star equal to A minus B union D, and then A and A minus B are the following disjoint unions.
You see here A equal to A star union B, ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें हैं। सेट ऐसी बना लेना तुम लोग, A सेट है, ठीक है। अब ये देखिए A इक्वल टू क्या क्या है, A स्टार B D, तीन सेट है यहाँ। ये जो पर्सन है, दिस इज योर A स्टार, दिस इज योर B, दिस इज योर D। तो ये इफ यू union of these three set is your A, you see A equal to A star union B union D, okay। or what is A minus B, you see from figure, ये सब these things, ये फिगर आप बना लीजिए तो बहुत आसान से ये लिख पाओगे, अदरवाइज आप रेट नहीं सकते इसको, ठीक है। भूल जाओगे कहीं ना कहीं क्या कहाँ क्या स्टार्ट था, क्या कौन सा सेट क्या सेट, ओके। अब देखिए A माइनस बी, ये A पूरा आपका तीनों के यूनियन A है, उससे फिर B को माइनस कर दीजिए, फिर क्या बचे सर, A स्टार यूनियन D, यू सी A से B को माइनस कर दिया तो ओनली रिमेन लेफ्ट, यू सी A माइनस बी इज A स्टार यूनियन D। फ्रॉम फिगर इस तरह की आप तो डायग्राम बना लीजिए, वहां से ये दोनों चीज सेट लिख लीजिए। A क्योंकि A से A माइनस बी में आपको मैप करना है, ठीक है। ये B है, ओके। A माइनस बी इनफाइनाइट है, A माइनस बी कंटेन्स ए डिन्यूमरेबल सबसेट D, तो आपने A माइनस बी, ये B है, पहले A कंटेन्स ए सबसेट B, तो एक B बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पर्सन बचा B के अलावा जो रिमेनिंग पर्सन है, ऑल दीज पर्सन्स आर A माइनस बी। अगेन वी आर टेकिंग, यू सी A minus B contains a denumerable subset D, तो A minus B again contains D, तो what is this, ये जो पर्सन बचा उसमें फिर एक D आ गया आपके पास, A minus B में D में, तो A B हो गया D हो गया। अब B और D के अलावा जो पर्सन बचा उसको हमने नाम रख दिया स्टार, लेट इट इज A स्टार, ओके। सो ये चारों में आप रिलेशन आप देखिए, आपको किससे किससे मैप करना है, यू आर टेकिंग मैप फ्रॉम A टू A minus B, तो दोनों को आप ऐसे लिखिए, A इक्वल टू A स्टार यूनियन B यूनियन D, A minus B equal to A star union D, okay। This is defined as f of A equal to A when A belongs to A star, okay। F of Dn equal to D twice n minus 1 when n belongs to n, f of Bn equal to D of twice n belongs to n। अब आप कहिए this map is 1 1 n on 2, 1 1 n on 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इक्विवेलेंट टू A minus B। अब 1 1 on 2 आप इस फिगर से देख सकते हैं। अब देखिए कैसे है, A इक्वल टू क्या है आपके पास, A स्टार, ओके, यूनियन D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे, यूनियन B है, B1 B कैसे है, B1 B2 B3 लाइक दिस सेट, ओके। और A माइनस बी सेट क्या है आप देखिए, A माइनस बी आपके सामने है, A स्टार यूनियन D, A स्टार यूनियन D, D1 D2 D3 D4 D5 D6, ये, ठीक है। अब ये इन दोनों सेटों में कैसे देखिए आपके पास 1 1 and 1 2 मैप है, आप इससे देखिए जो स्टार दोनों में है, राइट साइड में दोनों में स्टार है, तो स्टार से स्टार सेम सेट है, आप आइडेंटिटी मैप ले लीजिए जो ये कह रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए व्हेन ए बिलोंग्स टू स्टार, इसका मतलब ए से ए में आइडेंटिटी मैप, ओके। नाउ कम टू दिस सेट डी है, डी से कैसे, डी वाले सेट से कैसे मैप ले रहे हैं हम, देखिए डी एन इक्वल टू डी ट्वाइस एन माइनस 1, इसका मतलब D1 गोइंग टू 2 into 1 1 minus 1, D1 goes to D1, D2 goes to 2, D2 goes to 2 2 is 4 minus 1 3, so D2 goes to D3, D3 goes to D5। ये जो इधर के एरो हैं देख रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है, इससे हम चला रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस मैप, ओके। D1 goes to D1, D2 goes to D3, D3 goes to D5। अब आइए f of Bn, अब यहाँ के एलिमेंट्स को आप मैप करिए, ओके। So Bn, f of B1 equal to, you see Bn equal to D of twice m, so B1 goes to D2, okay। ये सब हमारे पास रह गया था, बाकी खाली D2 D4 D6। अब यहाँ से हम कर रहे हैं, देखिए Bn equal to D twice of n, so B1 goes to D2, B2 goes to D4, B3 goes to D6, B4 goes to D8 like this, okay। इसका मतलब देखिए you are covering all the elements from here, also here each and every element is covering, कोई रिपीट नहीं है, नथिंग, एक के एक, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर जो जो रह गया था बीच बीच में एक एक 2 4 6
वो B1 B2 B1 कवरिंग D2 B2 कवरिंग D4 B3 कवरिंग D6 लाइक दिस। सो ये जो तीन पार्ट में हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ये क्या कर रहा है, ये ए के जो मेंबर्स है, ओके, ए के ऑल द मेंबर्स ऑफ ए में कितने सेट है, तीन सेट में, तीनों सेट को वहां ए माइनस बी के ऑल एलिमेंट्स को कवर कर, दैट मीन्स इट इज 1 1 एंड 1 2। ओके, सो दे आर नो, कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास अनमैप्ड नहीं है, नो एलिमेंट्स रिमेन अनमैप्ड। ओके, ऑल द एलिमेंट्स आर मैप्ड 1 by 1। So therefore A is 1 1 and 1 2, 1 1 1 2 हो गए, therefore A is equivalent to A minus B। Okay, so cardinality of this equal to cardinality of this, we want to prove these things। okay, so it is proved 1 1 1 2 map hai, so therefore these two are equivalent। now power of the continuum, what is called power of the continuum of a set? A set A is said to have the power of the continuum। okay, इसी set को कब कहते हैं कि it has power of continuum? if A has the same cardinality as the unit interval I equal to 0 1। ठीक है, इसी सेट के कार्डिनलिटी के बराबर हो जाए किसी के सेट के कार्डिनलिटी, तो हम उसको कहते हैं दिस सेट हैज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम। ओके, ये डेफिनेशन है। अब आपके आगे ये सारी चीजें लिखे हुए हैं, ऑल दिस एलिमेंट, ऑल दिस इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल, ये डिफाइन ऐसे है, ये सब मालूम है क्लोज्ड इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं। ए इक्वल टू देखिए बी, सो क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, all these have the shows that any open or half open interval has the power of the continuum। all these has the power of the continuum। ये हमने वहां डिफाइन कर रखा है, देखिए वहां से लिखा है, डायरेक्ट ये लिखे हुए। देखिए फर्स्ट यूनिट में इक्विपोटेंट सेट्स जहां हमने डिस्कस किया था, वहां आप देख लीजिएगा कि क्लोज्ड इंटरवल इक्विवेलेंट टू 0 1 एंड 0 1, दिस ऑल द इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट, हमने प्रूव किया था वहां, बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। ओके, तो उसके हेल्प से ये, और हमारे पास 6.1 सी और थ्योरम 6.1 भी इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम 6.1 कहता है कि ये A is equivalent to B and B is equivalent to C, then A is equivalent to C। ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमने जहां डिफाइन किया था, जो थ्योरम है उसके हेल्प से, और ये एक दूसरे के, ये इसके साथ इक्विवेलेंट है, दिस इक्विवेलेंट टू दैट, सो A इक्विवेलेंट टू C, लाइक दिस, using that theorem, equivalence theorem, transitive property। okay, we will say that these things, all the intervals have the open ho, semi open ho, close ho, open interval ho। ठीक है, all the intervals have the power of the continuum। या तो all the intervals have the same cardinality as unit interval 0 1। okay, एक तो ये प्रूफ ही किया था हमने कि I इक्विवेलेंट टू I इक्विवेलेंट टू 0, ये एग्जांपल है हमने किया था, दिस टू आर इक्विवेलेंट। ओके, सिंबल लगाइए यहाँ, डबल कोई भी इक्विवेलेंट सिंबल है यहाँ। ओके, सो 0 1 इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड इंटरवल, ये भी ये ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्विपोटेंट सेट्स। यू सी दिस थ्योरम या दी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम कहे या थ्योरम कहे, वी प्रूव दिस। सो देयरफॉर दिस सेट AB, क्लोज्ड इंटरवल AB हैज द सेम कार्डिनलिटी 0 1, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, दिस क्लोज्ड इंटरवल हैज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम। इसी तरह का ओपन इंटरवल हैज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम, सेमी ओपन इंटरवल हैज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम। ठीक है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ऑल इंटरवल्स हैज द, एनी इंटरवल हैज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम। सबको अल्टीमेटली हम इसके साथ कह सकते हैं कार्डिनलिटी, इसके साथ इक्विवेलेंट शो कर सकते हैं। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ऑल sets are equivalent to unit interval 0 1। therefore all the interval has the power of the continuum by definition। okay, here are some references how you will this, ये जो यहाँ mentioned है 6.3 क्या है, 6.1c, this one, this problem 6.3 पेज नंबर this is this problem, ये सब all are equivalent हमने प्रूव कर रहे। उसी के हेल्प से ये कह रहा है ना कि by problem this and by problem this, any open, semi open, half interval, all has the power of continuum। okay, the set of real numbers R has the power of the continuum। यहाँ lastly we know that you see here
R from this set D equal to open interval minus 1 to 1. Okay, F is defined by this. Okay, ये ऐसे भी डिस्कस कर, अभी हमने जैसे किया कि R is you see R is here, this figure shows this R is 1 1 and 1 2 map. Okay, you can easily prove that this map f of x equal to x upon 1 plus mod x, एक बार x both f of x1 equal to f of x2, you can prove it x1 equal to x2. Okay, similarly you can prove it 1 2. Okay, so this map is 1 1 and 2. यहां से क्या प्रूव हो गया, R is equivalent to D. That means R is equivalent to D means this open interval minus 1 to 1 1. तो हम यहाँ कैसे कह देंगे R has the power of the continuum, because R has the power of the continuum कहना है हमें, तो R should be equivalent to unit interval 0 1 by definition. ओके, जब तक यूनिट इंटरवल के साथ हम इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 के साथ हमने इक्विवेलेंट लिखाया, हमने तो ओपन इंटरवल हमने तो यूनिट इंटरवल के साथ यहाँ मैप नहीं लिया. ओके, आर से यहाँ तो ऐसे तो नहीं लिया कि यूनिट इंटरवल, तो कह दिया आर इक्विवेलेंट टू दिस, देयरफॉर आर हैज द पावर ऑफ द कंटीन्यूअम. हमने यहाँ मैप कहाँ डिफाइन किया है, -1 to +1, वो भी ओपन इंटरवल. ओके, अब हमने देखिए अभी जो लास्ट पेज में बताया था कि कोई भी ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड इंटरवल हो, वो सब क्या है, इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1. तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आर इक्विवेलेंट टू, यार यू प्रूव दैट, देखिए यू सी यार व्हाट यू हैव प्रूव, यू प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल -1 to 1. एंड अगेन इन द लास्ट problems we discussed any interval which is equivalent to unit interval 0 1. Okay, so by transitive property R is -1 to +1, -1 to +1 to 0 1. Okay, so therefore R is equivalent to closed interval 0 1. So ultimately you prove that R is equivalent to unit interval. Okay, that means R has the cardinality as unit interval. Okay, so then by definition R has the power of the continuum. अच्छा 1 1 1 1 2 ये ऐसे भी डिफाइन देख सकते हैं आप इसमें फिगर से, ये दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन fx equal to x upon 1 plus mod x. You see this one, this is the graph of this function fx equal to 1 upon mod x. So this is 1 1, any line parallel to any line parallel to x-axis. Okay, यार you see cut only 1 point, इस तरह की भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, 1 2 भी ऐसे ही है, कोई भी लाइन पैरेलल टू x-axis. ओके, काट एटलीस्ट 1 पॉइंट. यस, किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो काट, यहां से काट हो. ठीक है, कोई भी लाइन आप ऐसे लाइन खींच लीजिए पैरेलल टू x-axis, इट विल काट, it will cut exactly in 1 point, so it is 1 1. Okay, and any line again parallel to x-axis, it cut this graph at least 1 point, so this is 1 2. So by this figure it is clear that this function is, बाकी ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, अपना मैन्युअली कर सकते हैं. f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. Okay, like this way you can prove it 1 1 and 2, and from the graph you can see also this is 1 1 and 2. So therefore these two are equivalent. मेन चीज है ये दोनों इक्विवेलेंट है. इसके बाद हम कैसे यूनिट इंटरवल में हमें पहुंचना है, अदरवाइज बाय डेफिनेशन से हम कैसे कह देंगे R has the power of the continuum, ये R सेट ऑफ रियल नंबर से. ओके, सो यहाँ इसको हम मिडिल में यूज करेंगे -1 to +1 ओपन इंटरवल, और यहाँ से हमने आप लास्ट प्रॉब्लम हमारा कोई भी ओपन इंटरवल हो वो किसके साथ इक्विवेलेंट है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के साथ. ओके, सो हम R से कहां पहुंच जाएंगे, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो आपका इक्विवेलेंट ऑफ इक्विपेटेंसी. ओके, ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है. ये जो रिलेशन है इक्विपेटेंट, ओके, इक्विवेलेंट सेट की जो रिलेशन है ये ट्रांजिट, ये दिस इज बेसिकली दिस इज अ रिलेशन एंड दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो. ओके, सो देयरफॉर बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी R2 ओपन इंटरवल -1 to 1 and then -1 to 1 to closed interval 0 1. Okay, so ultimately R to closed interval 0 1.
दोनों इक्विवेलेंट हो गया, सो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ R is the same as the cardinality of closed interval 0 1. ओके, अब ये बाय डेफिनेशन हो गया आप कि किसी भी सेट जो है यूनिट इंटरवल की बराबर जो आपका कार्डिनलिटी रखता हूं या उसके साथ इक्विवेलेंट हो, that set is called, that set has the power of the continuum. Okay, so therefore by this R has the power of the continuum. So this is all about of this topic. Okay, from next class we will start another thing. Okay, maybe Cantor theorem or some other theorem. Okay. ओके सर। सर एक नोट भेज देते इसके सर, सेकंड यूनिट के। हाँ बताइए। सर सेकंड यूनिट के नोट्स ना आपने व्हाट्सएप पर कहा था, वो भेज दिए सर, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करेंगे। चलिए भेज देंगे, सेकंड यूनिट के नोट्स भेज देंगे। एक तो लेक्चर है ही, फिर बाकी नोट्स भी भेज देंगे। ओके सही है सर, तो थोड़ा पीछे से सर रिवाइज हो जाता है, पढ़ लेते हैं ना उसमें। हाँ हाँ। फर्स्ट